بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بدامنی پر قابو پا لیا گیا، ایران نے کیا دعویٰ، حکومت کی تائید میں زبردست ریلی، انٹرنیٹ پر پابندیاں نرم۔ ایران کے خلاف مزید پابندیاں لگائی جائیں گی، امریکہ نے دی دھمکی، کہا شہری زیادتیوں کے ویڈیوز جاری کریں۔ نتن یاہو نے چارج شیٹ کے باوجود عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا، حکومت سازی پر غیر یقینی برقرار۔ الیکشنز میں کامیابی پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی بکری روک دیں گے، برطانیہ کی لیبر پارٹی نے کیا وعدہ۔ ساؤتھ چائنا میں امریکی جہازوں کا گزر، بیجنگ نے کیا واشنگٹن کو خبردار۔ امریکہ نے پاکستان سے کہا سی پہ گھاٹے کا سودا ہے، دوسری ڈیل کی پیشکش۔ کشمیر میں مسلسل 16ویں جمعے کو نماز نہیں ہو سکی، لاک ڈاؤن کے 110 دن پورے۔ ادھو ٹھاکرے مہاراشٹر کے چیف منسٹر ہو سکتے ہیں، شیو سینا کانگریس این سی پی اتحاد کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست۔ پہلے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش 106 پر ڈھیر، ایشانت شرما نے لیے 5 وکٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ ایران میں حکومت کے خلاف مظاہروں پر قابو پا لیا گیا ہے اور جمعے کو حکومت کی تائید میں زبردست ریلی نکالی گئی، ایرانی عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اس سے پہلے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے دھمکی دی کہ ایران کے خلاف مزید پابندیاں لگائی جائیں گی، جہاں حال ہی میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی معیشت پر کافی دباؤ ہے۔ حال ہی میں فیول کی قیمتوں میں اضافے پر یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ پومپیو نے ایرانیوں سے کہا کہ وہ ایرانی حکومت کے ظلم اور دباؤ کے بارے میں ویڈیوز، تصویریں اور معلومات بھیجیں۔ پومپیو نے ٹویٹر پر یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایرانی احتجاجیوں سے کہا ہے کہ وہ احتجاجیوں پر حکومت کے کریک ڈاؤن کو ثابت کرنے کے لیے ویڈیوز، تصویریں اور معلومات بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایرانی حکومت کی طرف سے حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرے گا۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر نے کہا کہ ایران نے احتجاجیوں سے جس طرح نمٹا ہے اور انہیں 48 گھنٹوں کے اندر قابو میں کیا ہے، اس سے واشنگٹن ناراض ہے۔ بریگیڈیئر جنرل علی فداوی نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق امریکہ اس بات سے پاگل ہو گیا ہے کہ صرف 48 گھنٹوں کے اندر فسادات پر قابو پا لیا گیا اور ایران میں کوئی بدنظمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج اور بدامنی میں فرق ہوتا ہے۔ ایران کی خصوصی فوج باسج کے کمانڈر نے حالیہ مظاہروں کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف کھلی جنگ قرار دیا۔ تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر جنرل سالار اگنوش نے کہا کہ مظاہروں کو ختم کرنا ایک کرشمہ ہے۔ رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زکارووا نے ماسکو میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فیول کی قیمتوں میں اضافے کا ایرانی حکومت کا فیصلہ امریکہ کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں اور امریکہ کی کارروائیوں کی وجہ سے ایرانی عوام کے بنیادی انسانی حقوق اور جائز مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ پر پابندیوں کو نرم کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں مظاہروں کے دوران یہ پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ اب پورے ایران میں امن بحال ہو گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ انٹرنیٹ کو آہستہ آہستہ بحال کیا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ایران کے حالیہ مظاہروں اور جھڑپوں میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، لیکن ایرانی عہدیداروں نے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि ईरान की हुकूमत ने मौत और सानहे को छुपाने के लिए इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई हैं। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि ईरान में हालात इस कदर बिगड़ गए कि इंटरनेट बंद किया जा रहा है ताकि अजीम ईरानी अवाम मुल्क में होने वाले खून खराबे के बारे में बात ना कर सकें। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट को जानिबदारी पर मबनी करार दिया है और कहा है कि ईरानी हुकूमत मरने वालों की सही तादाद बता सकती है। ईरानी ओहदेदारों ने कहा कि हालिया बदअमनी में गैर मुल्की ताकतों का हाथ है, जिनमें अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब शामिल है। इसराइल के यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे में कई फलस्तीनियों की गाड़ियों को आग लगा दी और उन्हें नुकसान पहुंचाया। ये कार्रवाइयां नाबलस और दूसरे मकामात पर की गई। बाज़ जगह नफरत पर मबनी नारे लिख दिए गए। इंसानी हकूक़ कारकुनों ने बताया कि यहूदी आबादकार फलस्तीनी देहातों में घुस पड़े और कई फलस्तीनी कारों को आग लगाई। इसके अलावा उन्होंने फलस्तीनी घरों की दीवारों पर नफरत पर मबनी नारे लिख दिए। इसराइली जेलों में 40 साल से कैद एक फलस्तीनी लीडर नायल अल बरगूसी ने अपनी कैद के 40 साल शुरू होने के मौके पर एक बयान में कहा कि फलस्तीनी इत्तेहाद पैदा करें और दुश्मन के खिलाफ एक हो जाएं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने उनका यह पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि दुश्मन से अपने हक छीनने का वाहिद रास्ता इत्तेहाद है। नायल बरगूसी को 1969 में इसराइल ने गिरफ्तार किया था। उन पर एक इसराइली सिपाही को कत्ल करने का इल्जाम था। इसराइली फौज ने फलस्तीनी अथॉरिटी के अल-कुद्स के गवर्नर अदनान गैस को गिरफ्तार कर लिया है। फलस्तीनी ओहदेदारों ने बताया कि इसराइली सिपाहियों ने सिलवान इलाके में उनके घर पर धावा करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। इसराइली पुलिस के तर्जुमान ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि अल-कुद्स में फलस्तीनियों की सरगर्मियों के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके खिलाफ चार्जशीट के बावजूद ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ इल्जामात तख्ता उलटने की कोशिश है। नेतन्याहू ने एक तकरीर करते हुए कहा कि मैं झूठ को जीतने नहीं दूंगा। नेतन्याहू पर इल्जाम है कि उन्होंने अमीर लोगों से तोहफे कबूल किए और मीडिया में ज्यादा मुस्बत कवरेज हासिल करने के लिए लोगों को नवाजा। उन्होंने कहा कि वो कानून के मुताबिक मुल्क की क़यादत करते रहेंगे। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में अदालतों, पुलिस और दूसरों पर उनके खिलाफ सियासी इल्जामात के जरिए साजिश करने का इल्जाम लगाया। इससे पहले इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसराइल में कोई भी कानून से ऊंचा नहीं है। उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ बाकायदा इल्जामात लगाते हुए ये बात कही। नेतन्याहू के खिलाफ चार्जशीट एक ऐसे वक्त दाखिल की गई है जब इसराइल की सियासी जमातें नई हुकूमत बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इस साल होने वाले दूसरे इलेक्शंस में भी कोई भी पार्टी या इत्तेहाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे अंदेशे हैं कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इसराइल में एक साल के अंदर तीसरे इलेक्शंस हो सकते हैं। कोलंबिया में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान झड़पें शुरू हो गईं। कोलंबिया की पुलिस और एहतजाजियों के बीच दारुल हुकूमत बोगोटा में ये झड़पें हुई। ये लोग अमेरिका की ताईद रखने वाली हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। यह हालिया बरसों में सबसे बड़ी रैली है। बोगोटा में जुमेरात को हजारों लोगों ने सड़कों पर आते हुए एहतजाज किया और मुल्क की मुआशी, समाजी और सिक्योरिटी पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाई। एहतजाजियों में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल थी। एहतजाजी शुरू में पुरअमन थे। इसके बाद जब पुलिस ने आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया तो गड़बड़ शुरू हो गई। लेबनान में सियासी बहरान के दरमियान आज़ादी का दिन मनाया गया। इस मौके पर फौजी परेड हुई और एहतजाज भी किया गया। कई अहम सियासतदानों ने एक साथ इस परेड में हिस्सा लिया, लेकिन ये परेड रवायती मकाम पर नहीं हो सकी, जिसकी वजह मुजाहरे हैं। लेबनान में लोग सिस्टम को बदलने का मुतालबा कर रहे हैं और कई हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इराक के वज़ीर दिफा नज्जार अश-शमारी और ईरान की ताईद रखने वाली कई तंजीमों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया है। हाल ही में बाज़ दस्तावेज़ात सामने आए जिनके मुताबिक इराक की वज़ारत दिफा ने सर्बिया से एहतजाजियों से निमटने के लिए हथियार हासिल किए। बगदाद और शिया आबादी वाले दूसरे 9 सूबों में अक्टूबर की पहली तारीख से मुजाहरे हो रहे हैं। इन मुजाहरों और झड़पों में अब तक 300 से ज़्यादा लोग हलाक हुए और 16,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। एहतजाजियों से निमटने के लिए इराकी फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल किया। दुनिया भर से मैं वक्त गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका रास्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बदअमनी पर काबू पा लिया गया, ईरान ने किया दावा, हुकूमत की ताईद में जबरदस्त रैली, इंटरनेट पर पाबंदियां नर्म। ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी, अमरीका ने दी धमकी, कहा शहरी ज्यादतियों के वीडियोस जारी करें। नेतन्याहू ने चार्जशीट के बावजूद ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया, हुकूमत साजी पर गैर यकीनी बरकरार। इलेक्शंस में कामयाबी पर इसराइल को हथियारों की बिक्री रोक देंगे, बरतानिया की लेबर पार्टी ने किया वादा। साउथ चाइना में अमरीकी जहाजों का गुजर, बीजिंग ने किया वॉशिंगटन को खबरदार। अमरीका ने पाकिस्तान से कहा सी पे घाटे का सौदा है, दूसरी डील की पेशकश। कश्मीर में मुसलसल 16वें जुमे को नमाज नहीं हो सकी, लॉकडाउन के 110 दिन पूरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। पहले डे एंड नाइट टेस्ट में बांग्लादेश 106 पर ढेर, ईशांत शर्मा ने लिए 5 विकेट। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, सीरिया के एलेपो में मिलिटेंट्स के मोर्टार हमलों में 7 सिविलियंस हलाक हो गए और 3 जख्मी हुए। सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने अहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो उसके इलाके में छेड़खानी ना करे। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब अमेरिका के 2 समुद्री जहाज साउथ चाइना के इलाके से गुजरे। अमेरिकी फौज ने ये बात मानी है कि उसके जंगी जहाज़ों ने पिछले कुछ दिनों में इलाके में सफ़र किया है। चाइना ने इस कदम पर गुस्से का इजहार करते हुए अमेरिका से कहा कि वो इस इलाके में चाइना की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी ना करे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि चोरों को खुला छोड़ देना मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी है। उन्होंने एक तरक्याती प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। इमरान खान ने करप्शन के इल्ज़ाम में जेल की सज़ा काटने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के पस मंज़र में ये बात कही। इस मसले पर पाकिस्तान की हुकूमत और अदालतों में इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं। नवाज शरीफ को सेहत की बुनियाद पर मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत हवाई जहाज़ देखते ही ठीक हो गई। इमरान खान ने कहा कि वो करप्ट सियासतदानों को मुल्क से बाहर भेजने के हक में नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि चाइना के साथ सीपैक प्रोजेक्ट के अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे और पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है। साउथ एशिया से मुतालिक अमेरिकी सफारतकार ने यह बात बताई। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को चाइना से बेहतर डील दे सकता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एशिया एलिस वेल्स ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह बात कही। बरतानिया की लेबर पार्टी ने कहा कि इसराइल को हथियारों की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। पार्टी ने कहा कि अगर वो अगले महीने होने वाले इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करेगी तो कम से कम हथियारों की बिक्री रोक देगी। लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात शामिल की गई है। मुस्तकबिल की जंगों में रोबोट्स मैदान जंग में लड़ेंगे, इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर रिसर्च हो रही है। एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। कश्मीर में जुमे को ज्यादातर दुकानें और बाजार बंद रहे। वादी में पिछले 110 दिनों से यही सूरत हाल है। इस जुमे को भी श्रीनगर की जामा मस्जिद और दूसरी बड़ी मस्जिदों में जुमे की नमाज की इजाजत नहीं दी गई। इंटरनेट अब भी बंद है, सड़कों से ट्रैफिक गायब है। जामा मस्जिद में मुसलसल 16वें जुमे को नमाज नहीं हुई। 5 अगस्त को मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A बर्खास्त कर दिया था और रियासत को 2 मरकजी इलाकों में बांटने का फैसला किया था। तब से यही सूरत हाल है।
सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करते हुए कहा गया कि रियासती हुकूमत बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को इत्तेहाद करने से रोका जाए। महाराष्ट्र के एक वोटर ने यह दरख्वास्त दाखिल की और कहा कि ये तीनों पार्टियां इलेक्शन के बाद इत्तेहाद करते हुए इलेक्शन में अवाम के फैसले को शिकस्त देने की कोशिश कर रही हैं। सुरेंद्र सिंह नामी इस शख्स ने कहा कि इन पार्टियों ने असेंबली इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ा और अब इत्तेहाद करते हुए हुकूमत बनाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। शिवसेना के अरकान असेंबली ने पार्टी लीडर से कहा कि वो नई हुकूमत की बागडोर खुद संभालें। इम्कान है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस और एनसीपी की ताईद से शिवसेना की हुकूमत कायम हो जाएगी। उद्धव ठाकरे के मकान मातोश्री पर नए एमएलएज की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम शिवसेना एमएलएज ने मुतालबा किया कि उद्धव ठाकरे हुकूमत की क़यादत करें। समझा जाता है कि तीनों पार्टियों का इत्तेहाद जल्द ही हुकूमत बनाने का दावा पेश करेगा। इस दौरान मुंबई में एनसीपी सदस्य शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सीनियर कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई। तफसीलात को तय करने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लीडर्स की जुमे को मीटिंग हुई। खबरों में कहा गया कि एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने पर जोर दिया। इस तरह अब आदित्य ठाकरे की दावेदारी फीकी पड़ गई है। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर नितिन गडकरी ने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के दरमियान इत्तेहाद उसूलों पर नहीं बल्कि मौका परस्ती पर मबनी है। क्रिकेट। हिंदुस्तान ने अपने पहले डे एंड नाइट टेस्ट मैच में जो कोलकाता में खेला जा रहा है, बॉलिंग का शानदार मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश को 106 पर आउट कर दिया। ईशांत शर्मा ने 22 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। उमेश यादव ने 3 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश की तरफ से शादमान इस्लाम ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बदअमनी पर काबू पा लिया गया, ईरान ने किया दावा। हुकूमत की ताईद में जबरदस्त रैली। इंटरनेट पर पाबंदियां नर्म। ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमेरिका ने दी धमकी, कहा शहरी ज्यादतियों के वीडियोस जारी करें। नेतन्याहू ने चार्जशीट के बावजूद ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। हुकूमत साजी पर गैर यकीनी बरकरार। इलेक्शंस में कामयाबी पर इसराइल को हथियारों की बिक्री रोक देंगे, बरतानिया की लेबर पार्टी ने किया वादा। साउथ चाइना में अमरीकी जहाजों का गुजर, बीजिंग ने किया वॉशिंगटन को खबरदार। अमरीका ने पाकिस्तान से कहा सी पे घाटे का सौदा है, दूसरी डील की पेशकश। कश्मीर में मुसलसल 16वें जुमे को नमाज नहीं हो सकी, लॉकडाउन के 110 दिन पूरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी इत्तेहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। पहले डे नाइट टेस्ट में बांग्लादेश 106 पर ढेर। ईशांत शर्मा ने लिए 5 विकेट। ये थी आज की खबरें। अब शरीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।